اے عزیزوں، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، سمجھا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت، مسرت اور راحت کا سبب ہو۔ آمین۔ آئے میرے عزیزوں، چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں بند کیجیے گا، اپنا دائیں ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیں اور بائیں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لیں اور میرے پیچھے کہیے گا، خداوند تو آج مجھ سے کلام کر، آج خداوند تیرا کلام میرے خلاف ہو، آج خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے میری اصلاح اور تربیت ہو۔ خداوند تو مجھے بتا کہ میں کس طرح سے اپنی زندگی گزاروں۔ خداوند وہ حکمت جو تجھ نوروں کے باپ سے آتی ہے، آج وہ حکمت تیرے کلام کے وسیلہ سے میرے ذہن میں آئے، اور خداوند تو مجھے سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل دے، یسوع کے نام سے، آمین۔ معززوں، ابھی بائبل مقدس میں سے ہم نے جس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے، سنا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے اسے سنا ہو، لیکن آج جو پیغام میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، جو بھید خدا کے روح نے مجھ پر کھول بھید میں آپ کے درمیان پہنچانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ آپ پہلی بار سن رہے ہوں۔ بائبل مقدس میں سے ابھی ہم نے پڑھا اور سنا، اے عزیزوں، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ۔ اس سے پیشتر کہ میں اس کی تفسیر کی جانب بڑھوں، میرے ذہن میں ایک بڑا ہی مشہور زمانہ ایک گیت آ گیا ہے، اور وہ گیت یہ ہے، انس مل صاحب کا گیت ہے، چلے ہو تم خدا کے ساتھ راستہ سکڑا ہے۔ اس میں ایک ورس، ایک آیت، ایک انترا ہے، وہ یہ کہ بتھیرے آئیں گے کہیں گے ہم تمہارے ہیں، خدا کے روح کی سننا بات کیونکہ راستہ سکڑا ہے۔ آج دور حاضر میں میں جس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس بات کو سیکھنے میں مجھے ایک طویل عرصہ لگا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو اس بات کو ابھی تک سیکھ نہیں پائے، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ وقت بھی کم ہے لیکن یہ بھید آپ تک پہنچا سکوں۔ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، روح القدس کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو کیا کہا جاتا ہے؟ روحوں کا امتیاز کرنا۔ ہمیں سے کتنے لوگ یہاں پر روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں؟ بس 4-5۔ روح القدس کی نعمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ روحوں کا امتیاز کرنا۔ اور روحوں کا امتیاز کرنا کیا ہے؟ آپ جانیں کہ یہ شخص خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ اب انگلش کی بائبل میں جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، وہ لفظ یہ ہے، Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God۔ کیا کرنا ہے؟ انہیں ٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے آزمانا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ آج دور حاضر میں چند قسم کے لوگ ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور آپ نے اگر آپ ان لوگوں سے بچ جائیں گے تو آپ کی زندگی ایک پرامن اور پرسکون زندگی ہوگی۔ آپ اسے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جو ایک نا پنجابی نا محاورہ ہے، جنہیں جانتے انہیں تا۔ اس محاورے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ کہتے ہیں جنہیں ساڑھے بچے ہوں گے اتنی ساڑھے مشکلات پریشانیاں آن گیا۔ اور اسی طرح سے جتنے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں گے، اور اگر وہ خدا کی طرف سے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، اگر وہ خدا کی طرف سے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی خدا نے ان لوگوں کو آپ کے ساتھ نہیں جوڑا، تو لوگوں کی وجہ سے بھی آپ کی زندگی میں دشواری پریشانی آتی ہے۔ اور میں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں چند قسم کے لوگ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی قسم کے لوگ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں لیچ پیپل۔ اب یہ لوگ وہ لوگ ہیں جس طرح اگر آپ کبھی نہر پہ گئے ہوں، اگر آپ کہیں کسی ایسے کھلے سمندر والی سائٹ پر گئے ہوں، وہاں پر اگر آپ کو کوئی لیچ جسے آپ جو کہتے ہیں وہ چمٹ جائے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے اور آپ کا خون وہ پیتی رہتی ہے۔
اور جب آپ اسے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑی مشکل کے ساتھ وہ اترتی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہماری زندگی میں آتے ہیں اور وہ اس لیچ کا کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کوئی ایسے عزیز اقارب ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دوست ایسا ہو جو کبھی بھی آپ کے کسی بھی کام نہیں آیا، لیکن آپ نے ہر وقت اس کی کسی نہ کسی طور سے امداد مدد کی۔ یہ وہ قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور آپ کو چوستے رہتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کا ٹائم، آپ کی انرجی، آپ کا پیسہ، آپ کا ذہنی سکون یہ سب برباد کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اپنی کوئی ٹینشن نہ ہو، آپ خدا میں ہیں، خدا نے آپ کو سکون بخشا ہے، لیکن لوگوں کی وجہ سے آپ کو لوگوں کی فکریں لگی رہتی ہیں، اور اس کا کیا ہوگا، اس کا یہ ہونا ہے، اس کا وہ ہونا ہے۔ تو کلام خدا میں لکھا ہے ہر ایک روح کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ ہر ایک روح کو آزماؤ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیونکہ خدا میں ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہر ایک شخص اچھا ہے، ہر ایک شخص بھلا ہے، ہر ایک شخص خدا میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو اچھا ہوتا ہے اسے ہر ایک اچھا نظر آتا ہے، جو برا ہوتا ہے اسے ہر ایک برا نظر آتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ اتنے بھی اچھے نہ بنیں کہ ہر کوئی شخص آئے اور آپ کی اچھائی کا استعمال کرے اور آپ کو ٹشو کی طرح پھینک کر چلا جائے۔ کلام خدا کی آیت ہے حد سے زیادہ نیکوں کا نہ بن، اس کی کیا ضرورت کہ تو اپنی جان کو دکھ دے۔ یعنی there is a limit for you to be righteous. there is a limit for you. آپ کے لیے ایک حد مقرر ہے کہ آپ نے نیکی کرنی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب کسی کو مصیبت پریشانی میں دیکھتے ہیں ہم اپنی اوقات سے پھڑ کر، ہو سکتا ہے سارے ایسے نہ ہو لیکن اپنی اوقات سے پھڑ کر کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں، کوئی ایسی امداد کر دیتے ہیں جس کے بعد ہمیں کئی سال تک اس کا بھگتان بھرنا پڑتا ہے۔ آج جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی میں گزر رہی ہوں یا گزری ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ یہ باتیں پہلی بار سن رہے ہوں، اور اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں تو آج ہی اس پر عمل کریں تاکہ آگے آپ کی زندگی میں پریشانی دشواریاں نہ ہوں۔ اب دوسرے قسم کے لوگ کیا ہیں؟ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سنیک پیپل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سانپ کی طرح ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دو منہ رکھتے ہیں، ٹو سائیڈڈ ہوتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ بھی رہیں گے، آپ انہیں دودھ پلاتے رہیں، لیکن جب باری آتی ہے، جب باری دیکھیں گے، جب یہ موقع پائیں گے تو ضرور کسی نہ کسی طرح سے آپ کو ڈسیں گے۔ اگر کوئی شخص وہ یہ کہے میں آپ کا بہت اچھا دوست ہوں، کوئی شخص یہ کہے میں آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوں، لیکن وہی شخص آپ کی جب دوسروں کے سامنے انسلٹ کرے گا، ڈس رسپیکٹ کرے گا، جیسے اسے موقع ملے تو وہ اپنی اوقات ظاہر کرے گا۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جو ٹو سائیڈڈ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سانپ کہا جاتا ہے۔ ایک پنجابی کا محاورہ ہے، اتوں نیک تے اندروں سنیک، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں سے بھی آپ نے بچنا ہے، ایسے لوگوں سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہو سکتا ہے آپ کے گروہ میں، آپ کے سرکل میں کوئی ایسے لوگ ہوں کہ وہ کہیں گے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر envious people، وہ لوگ جو منہ سے آپ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوں، جب بھی آپ سے ملتے ہوں بہت اچھے طریقے سے ملتے ہوں، کہتے ہوں آپ بہت اچھے ہیں، بہت بھلے ہیں، آپ اپنی برکت، اپنی خوشی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہو، آپ کے منہ پر کہیں گے او بھائی بہت اچھا، خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے، خداوند آپ کو یہ دے، خداوند آپ کو وہ دے۔ اور پھر وہی لوگ، مثال میں یوں دینا چاہتا ہوں، اگر آج کوئی آپ گاڑی لے لیں اور گاڑی لینے کے بعد آپ اس ایسے لوگوں کو کہیں ہم نے گاڑی لے لی، وہ آپ کے منہ پر کہیں گے بہت اچھا، خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے، لیکن بعد میں آپ کی بیگ پر کیا کہیں گے، آپ کے پیچھے کیا کہیں گے، او انہوں نے پیسے ضائع کر دیتے، میرے کو انہیں پیسے ہوں 30-40 لاکھ روپے دے، میں تو کوئی گھر لے لینا سی، او انہوں کو دے حرام دا پیسہ آیا ہے، پتہ کتنے کتنے لاندے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انوی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حسد رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کر کچھ نہیں سکتے، منہ پر آپ کے سامنے یہ کہیں گے آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ حسد رکھتے ہیں، اور پھر جب انہیں موقع ملے گا اس حسد کو ظاہر کرنے کا تو پھر وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی آپ بچ کے رہیے، خدا کی طرف سے نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو دو منہیں ہوتے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو آپ کو ایک لیچ کی طرح لگ جاتے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے نہیں ہوتے۔
फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिसे हम अपने क्लोज समझते हैं, ये शख्स मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये शख्स मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज है। हो सकता है वो आपका कोई रिलेटिव हो सकता है वो आपका कोई दोस्त हो, लेकिन जो क्लोज शख्स होता है वो शख्स क्या करता है, जो जिसे हम क्लोज समझते हैं, आप अपनी भलाई की बात उनसे करते हैं, आप कहते हैं खुदावंद ने मेरे लिए ये दरवाज़ा खोला, और फिर वही शख्स हर एक कोशिश करेगा किसी ना किसी तरह से वो दरवाज़ा, वो डोर, वो रास्ता बंद हो। अगर वो कुछ कर नहीं सकता तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो आप पर जादू तवीज़ कराना शुरू कर देते हैं, वो आपको किसी ना किसी तरह से गिराना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में हमें यूसुफ की मिसाल मिलती है। जब यूसुफ ने एक ख्वाब देखा कि चांद सितारे सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं, तो तब उसने, और मेरा जो कूल्हा है वो सबसे ऊपर चला गया है, तो उसने जब ये बात किसे बताई, किसे बताई? अपने भाइयों को। और उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया? उसे चर्च च हालेलुया दे नारे जिन्हें मर्जी लवा लो ला लांगे, चर्च दे विच तुसीं तारीफ करानी हो करा लांगे, लेकिन अकल दी गल नहीं सीखनी। उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया? की कीता है? कुएं च सुट दिता। ऐ किहो जिहे भरा ने। So that's mean they are not from God. यानी हसद करते हैं। आज एक पंजाबी का मुहावरा है, और कहते हैं जे तुसी गोड़ भी खाओ तो लुका के खाओ। आज हम समझते हैं कि मैं किसी शख्स से अगर अपनी बरकत को शेयर करूंगा, मैं उसे बताऊंगा खुदा मेरे लिए ये कर रहा है, वो शख्स खुश होगा। लेकिन आज जिस तरह का दौर है, पिछले 20 साल के अंदर जिस तरह से दुनिया तब्दील हुई है, उस तरह से पहले कई हज़ारों सालों में नहीं हुई। क्योंकि 20 साल के अंदर जैसे ही सोशल मीडिया का दौर आया, जैसे ही कंपैरिजन आया है, जैसे ही अपने आप को दिखाना आया है, वैसे ही लोगों में हसद, बुग़्ज़, तफरीके वो इस कदर से बढ़ गए, आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये शख्स वाकई ही खुदा की तरफ से है या नहीं। लेकिन इन चंद बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं। जो शख्स खुदा की तरफ से होता है वो कभी भी आपसे हसद नहीं करता, वो कभी भी ये नहीं कहता। आप अगर आपने किसी शख्स को आजमाना है कि वाकई ही ये खुदा की तरफ से है या नहीं, किसी भी शख्स की कोई एक बुराई उसके सामने करके देखें, तो वो उस शख्स की इतनी ज़्यादा बुराइयां आपके साथ कर देगा। इस बात को याद रखें, अगर कोई शख्स आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, तो वो शख्स किसी के सामने आपकी भी बुराई करेगा। दे आर नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, वो खुदा की तरफ से नहीं है। फिर ऐसे लोग जो हमेशा आपको डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा आपको कहते हैं, आप कोई प्लान बनाते हैं, आप कुछ सोचते हैं और आप वो शेयर करते हैं, वो आपको कहते हैं नहीं ऐसे एंड ना करिए हो जाएगा, एंड ना करिए हो जाएगा। ऐसे लोग जो आपको कर्स करते हैं वो भी खुदा की तरफ से नहीं होते। आजमाएं, यानी आप इन चीज़ों से आजमा सकते हैं कि ये शख्स, ये रूह खुदा की तरफ से है या नहीं। वो लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, ओ भाई कितने देर को होना, कभी नहीं तो कुछ कर सकता। जो खुदा की तरफ से लोग होते हैं वो आपको हमेशा अपलिफ्ट करते हैं, वो हमेशा आपको उभारते हैं कि आप ज़रूर करें, खुदावंद आपकी मदद रहनुमाई करेगा। और जो शख्स अबलीस की तरफ से होता है वो नहीं चाहता। आजकल लोगों की मेंटालिटी भला क्या है? वो ये है, असी कुछ नहीं कीता तो अगला भी कुछ ना करे। आज ये लोग सोचते हैं, बेशक कोई कितना आपके अजीज हो, बेशक कोई कितना आपके साथ नवाले खाता हो साथ में बैठकर, लेकिन आज अंदर से लोग कुछ और हैं, बाहर से लोग कुछ और हैं। इसे कलाम खुदा में लिखा है, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ। You have to testify them, you have to test them। आपको पता है खुदा आजमाता है, खुदा परखता है, खुदा देखता है। और जब आप में खुदा का रूह कुदस होता है तो फिर आप भी लोगों को आजमाते हैं। आजमाने का मतलब ये नहीं कि आपने उन्हें मुसीबत परेशानी में डाल देना है, बल्कि आपने उनकी बातों से, उनके रवैये से उन्हें आजमा लेना है। अक्सर औकात मैं ये बात कहता हूँ कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो किताबें नहीं, मैं लोगों को पढ़ लेता हूँ। आप मेरे साथ 10 मिनट गुजारें, मैं आपके अंदर क्या है वो सब आपको बता सकता हूँ। तो तब जब खुदा का रूह आपके ज़िंदगी में होता है, फिर आप इस काबिल बनते हैं।
تو آج یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں. کہیں آپ تو ایسے شخص نہیں ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے سرکل میں کوئی ایسے شخص تو نہیں ہے جو آپ کی برکت کو روکنے کا سبب بن رہے ہیں. پھر اگلی قسم کے یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ مرضی ہو جائے. دیز آر دا بیگر پیپل. مانگنے والے لوگ. انہوں نے خدا سے نہیں مانگنا ہوتا. یہ کبھی کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جس کا توکل کسی انسان پر ہوتا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے مانگ کی ضرورت پوری کر لیں گے, کبھی کسی سے مانگ کی ضرورت پوری کر دیں گے, لیکن ضرورت صرف وقتی طور پر پوری ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی وقتی طور پر ضرورت پوری ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک نئی مصیبت, ایک نئی ضرورت, ایک نئی پریشانی آ جاتی ہے. ہمیشہ اپنا توکل خداوند پر رکھیں کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا, خداوند مجھے مہیا کرے گا. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے کبھی کہا ہو ہم نے کہ بھائی ساجد میرا بجلی کا بل اتنا ہے, آپ میری مدد کریں. بھائی قاسم ہمارا اتنا بل آ گیا چرچ کا, آپ ہماری مدد کریں. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی یہ کہا ہو؟ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ کہا ہو او ہماری ڈلیوری ہونی ہے ہماری مدد کریں, او ہماری بائک کا کام ہونا ہے ہماری مدد کریں. آپ اس بات کو یاد رکھیں, یو آر ناٹ دا بیگر. آپ مسیح میں ہوتے ہوئے مانگنے والے فقیر نہیں ہیں, بلکہ آپ بادشاہ کے بیٹے ہیں, آپ دینے والے ہیں, آپ راجہ کے بیٹے ہیں, آپ پرنس ہیں, آپ پرنسسز ہیں, آپ شہزادے ہیں, شہزادیاں ہیں. لیکن اگر آپ نے آج بھی اپنا مائنڈ سیٹ یہ رکھا ہوا ہے جہاں پر میں نے کسی کی کوئی چیز دیکھی میں نے مانگ لی, دیٹس مین یو آر ناٹ فرام دا ہولی ووڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پاک میراث کا حصہ ابھی تک نہیں بنے. میرے سامنے کوئی شخص جتنا مرضی اچھا کھانا کھا رہا ہو, میں نے کبھی اس کو یہ دیکھ کے نہیں کہا یہ کھانا کھا رہا ہے میں کیوں نہیں کھانا کھا رہا. میں آپ کو اپنی زندگی ذاتی مثال بتا رہا ہوں. ہمارے اس وقت پر اس قدر حالات خراب تھے کہ ایک چکن سمولی جو آپ گورمے سے لے لیتے ہیں ابھی 200-250 کی ہے, اس وقت پر 70-80 روپے کی تھی. اور مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں. ان لوگوں کے گھروں میں میٹنگ بھی کر دی, سب کچھ کرنا, لیکن جیسے انہوں نے کھانا لے کر آنا میں اسی ٹائم پر وہاں سے نکل جاتا تھا. نہ ان کے کھانے کھائے, نہ ان کی چائے پی. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کھانا مجھے خدا سے نہیں ملائے گا. آج ہم کیا کرتے ہیں, آج ہم کسی لوگوں کی آج کل ایسی عادت ہے, اور خاص طور پر میں نے ایسی بہنیں دیکھی ہیں جن کی یہ عادت ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے مانگتی رہتی ہیں. بیگر پیپل. آپ جب تک آپ کا ذہن تبدیل نہیں ہوگا تب تک آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوگی. ایک آپ کی زندگی میں کسی کی چیز کو دیکھ کر حسد بھی آنا چاہیے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ چیز دے دیں. خدا نے آپ کو لینے والا نہیں بنایا. میں نے اس بات کو ایک 15-16 سال کی عمر میں سیکھا ہے, اور آج ہماری عمر 50 سال ہو جاتی ہے, 60 سال ہو جاتی ہے, ہم یہ سوچتے رہے جتنے ویکیا کوئی فائدہ ہوتا چوک لیتا. خدا نے آپ کو ایسا نہیں بنایا. خدا نے آپ کو دینے والا بنایا ہے. خدا کی خدمت کے لیے آپ دیں. مانگنے آپ خدا سے مانگے. آج تک کسی انسان سے نہیں میں نے مانگا. اور یہی دا سیکرٹ آف سکسیس بھی ہے, یہی برکت اور سرفرازی اور ترقی کا راز بھی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی سے. وہ تمام تر لوگ جو آپ سے مانگتے رہتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, اور جب تک اس بات کو یاد رکھیں, یہ بات آپ لکھ لیں, آپ کسی کی مدد ایک بار کریں گے, ویری گڈ, آپ بہت اچھے انسان ہیں. آپ نے دوسری بار مدد کر دی, آپ اچھے ہیں. لیکن جب آپ تیسری بار مدد کرنے سے انکار کر دیں گے تو پھر وہ شخص کہے گا اس سے برا شخص کوئی اور ہے نہیں. کیوں؟ جب آپ کسی شخص کی بار بار مدد کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ شخص تیسری بار یہ سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے, ان کا مدد کرنا ان کا فرض ہے, اور ان سے مدد لینا میرا حق ہے. ایسے لوگوں سے خبردار ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں آپ نے ایک بار مدد کر دی, دیٹس ویری گڈ, لیکن جب آپ مدد کرتے ہیں پھر خدا مدد نہیں کر پاتا. جب آپ دوسرے شخص کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ اس نے جیسے اس کے منہ سے بات نکلنی ہے میں نے پورا کر دینا ہے, دیٹس مین آپ خدا کا کام میں انٹرفیئر کریں.
आप खुद खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जिस पर खुदा रहम नहीं कर रहा, आपको भी रहम करने की जरूरत नहीं। मेरी बातें सख्त होती हैं, मेरी बातें करख्त होती हैं, लेकिन मैं सच बात करता हूँ। अगर किसी शख्स को खुदा नहीं दे रहा तो मैं कौन होता? मैं खुदा से ज़्यादा बढ़ के हूँ? मैं नहीं हूँ। आई एम नथिंग। मैं खुदा यीशु की जूती की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या है? दैट्स मीन कभी कभार ऐसा होता है, खुदा आपका दायरा तंग इसलिए करता है ताकि आपको दुरुस्त कर सके। और जब खुदा ने किसी का दायरा तंग किया होता है, हम उसका दायरा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुदा के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, हम खुदा के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों से भी खबरदार रहें जिनका काम सिर्फ एक हो, मांगना। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सारे, आप बचपन से लेकर बड़े हो जाएंगे, उनके लोगों के हालात कभी भी ना सही नहीं होंगे। और जो तुम पूछोगे ना, आजकल तो लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है, साढ़े हालात बड़े खराब है, साढ़े हालात बड़े खराब है, साढ़े हालात बड़े खराब है, ओहो साढ़े ते हालात बड़े खराब है। ऐसे लोगों से भी आप खबरदार हैं। हालात खराब होते हैं। हालात खराब का मतलब क्या है? हमारे पास पैसे नहीं है, वेरी सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि आप 10-20 साल से भी आप कोई 1 रुपया कमा नहीं सके। आपके 10-20 साल पहले भी हालात खराब थे, 10-20 साल बाद में भी हालात खराब है, तो आप फिर कैसे मसीह हैं? आपके सारी उम्र ही हालात खराब रहने। यीशु मसीह ने एक बार भी अपनी जुबान से ये नहीं कहा, किसी शागिर्द ने कहा हो, इवन के जो लोग यीशु मसीह की मदद करते थे उन्होंने कहा हो हमारे हालात खराब है। लेकिन आज मसीहों का तकिया कलाम है, साढ़े ते हालात बड़े खराब है, असी किवें दया की दईए, साढ़े ते हालात बड़े खराब है। बाकी कोई विआह शादी आए उदों हालात सैट हो जाते हैं, बाकी किते कोई देना लेना पे उदों हालात सैट हो जाते हैं, बाकी वो हालात किंदे अगे खराब रहते हैं जो उन्होंने पता है कि यह बंदा सहन वाला है, उन्हें अगे उन्होंने हालात हर टाइम खराब रहते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी हालात खराब रहते हैं। ऐसे लोगों से भी आप खबरदार हैं। फिर वो लोग जो आपको कैश करना चाहते हैं, और वो लोग ऐसे लोग हैं जो हो सकता है आपके बड़े अजीज उकारब हों, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे लोग आपको कैश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से भी होशियार है, ये भी खुदा की तरफ से नहीं होते। यानी कैश करने का क्या मतलब है? अपना दुखियाड़ा आपके सामने सुनाएंगे, आप ऐसा करें, भाई हरून इधर है कि नहीं, आज नहीं आए। मैं उनकी मिसाल देता हूँ, उनके साथ ये जेन्युइन हुआ है। एक शख्स था, उनका दोस्त, उस दोस्त ने कहा कि मेरे इस तरह हालात खराब है, मुझे एक फ़ोन किस्तों पे निकलवा दो। आप आएंगे उनसे पूछ लेना। उन्हें कहा मेरा एक दोस्त ही, उन्हें क्या मैनू किस्तां दे फोन लिखवा कटा दो, 50,000 का फोन सी, अज तो कोई 7-8 साल पहले की गल। उन्हें कटवा दिता, गारंटी भी अपनी दे दी, सब कुछ अपना है। और दोस्त ने पहली किस्त दी फोन की, उस बाद जिन्नियां भी किस्तां सारियां भैया रूम ने दी। ऐसे वो लोग हैं जो आपको कैश करते हैं, ऐसे वो लोग हैं जो आपको कैश करना चाहते हैं, ऐसे वो लोग हैं जो अपना बर्डन, अपना बोझ आप पे डालना चाहते हैं। जिसका बोझ है वो खुद उठाए। इस बात को याद रखें, हम कलाम खुदा में लिखा है एक दूसरे का बोझ उठाओ, लेकिन उनका मतलब है नहीं दूसरे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੀ ਜਾਓ। खुदा कहता है रूह से भी चल और अक्ल से भी चल। खुदा चाहता है कि आप अपनी अक्ल का भी अंदाजा लगाएं, आप अपनी अक्ल से भी काम लें। जो आपको कैश करते हैं उनसे भी आप खबरदार रहें। आप जो आप पर अपना बर्डन डालते हैं, मिसाल के तौर पर एक शख्स था, उसने कहा कि मेरा बेटा वो उसने पेपर देने हैं और आप ऐसा करें कि उसकी जो उसे एक अच्छे से ट्यूशन मैंने भेज दी, उस ट्यूशन की फीस 10 से 12 हज़ार है पर महीना। तो पास्टर साहब आप ऐसा करें कि वो जो 10-12 हज़ार है पर महीने का, आप बड़े लोगों की मदद करते हैं, आप वो 10-12 हज़ार भी दे दिया करें।
मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, लेकिन हर रोज़ नहीं मैं मदद करके बैठा होता। मैं कोई एटीएम नहीं हूँ, आप आए हो, बीच में कार्ड डाला, कोड डाला और पैसे निकाल के हो गए। देखिए, जब खुदा का रूह मुझे उभारता है, आप बेशक दुनिया के किसी कोने में भी होंगे, आपकी मदद अगर खुदा ने मेरे वसाकत करनी है तो वो हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि पास्टर साहब को असी कोई रिक्वेस्ट करांगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कभी होगा। पास्टर साहब इतने एवं नहीं बैठे, पास्टर साहब कई मुल्कों का पानी पी के इतने खलोते हैं। तो तुम आके देखो, सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, आप बेशक इसे दुनियावी बात कहें, लेकिन ये बात हकीकत है। आप किसी की एक बार मदद करते हैं, आपको उसका नेचर पता चल जाता है। जो लोग अनग्रेटफुल होते हैं, जो लोग एहसान फरामोश होते हैं, जो लोग कभी भी आपकी भलाई को मद्देनजर में नहीं लेकर आते, उनकी कभी मदद ना करें। और मुझे पता है कैसे वो लोग होते हैं जो इब्लीस की तरफ से होते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया, चोर आता है चुराने के लिए, नकब लगाने के लिए और मार डालने के लिए। क्या वो चुराता है? आपको पता है इब्लीस क्या चुराना चाहता है? इब्लीस चुराना चाहता है आपके पैसे। वो आपसे पहली चीज़ ही आपका पैसा चुराता है। उसे पता है जो पैसा आने को जाएगा फिर टेंशन होएगी, टेंशन दे विच ए खुदा तो दूर होएगा। पहली चीज़ वो ऐसे करता है। और ज़रूरी नहीं इब्लीस डायरेक्ट आपके पास आए, इब्लीस अपने एजेंट्स को भेजता है, इब्लीस अपने लोगों को भेजता है और वो लोग आपसे आपका पैसा चुराते हैं। ऐसे लोगों से बता रहे हैं। अगर कोई शख्स पढ़ता है, वेरी गुड, मैं हर एक शख्स को इंकरेज करता हूँ, मैं बच्चों को इंकरेज करता हूँ, आप पढ़ो, लेकिन जितनी आपकी चादर है उसके मुताबिक आप पैर फैलाएं, उससे बढ़ के ना करें। मैंने एफसी कॉलेज में मैं गया, हम सब ने पादरियों को कितना पैसा है ना उन्हें लुट्टी चाहिए। बहुत सारे लोग आज ऐसा ये समझते हैं, आज क्यों पादरी अमीर है, कलीसिया गरीब है। इब्तदाई कलीसिया अमीर थी, पादरी गरीब था। आज पादरी अमीर है, कलीसिया गरीब है, क्योंकि कलीसिया ने सब कुछ उलट कर दिया है। देखिए, उस वक्त कलीसिया खादम को देने वाली थी, आज कलीसिया का तवक्कल ये है खादम हमारी मदद कर दे। ये छोटी बात नहीं मैंने की। आज क्या है, खादम हमारी मदद कर दे। तो जेड़ा मदद कर दे वो गरीब होंदा है कि अमीर? जिंदे पल्ले उनकी बल्ले बल्ले, जिंदे पल्ले है वे वो गरीब होएगा कि अमीर? दसो, अगर खादम मदद करने वाला है तो कलीसिया मदद लैन वाली है, तो फिर कलीसिया गरीब दी गरीब रहेगी, खादम अमीर दा अमीर होता जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने आपको बयान किया। उस वक्त कलीसिया मदद करती थी, की कर रहे ने, जायदाद बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, और सारा लिया के रसूलों के कदमां च रख रहे हैं। और असीं की कहते हैं, पास्टर साहब को तो लगता है वाह निज़ाम है, पास्टर साहब के तो बड़े हाथ पैंदे ने, चलो कितने साडा भी कोई माड़ा मोटा सड़ जाएगा। हम ये सोचते हैं। आप देखिए, इस बात को नोट कर दें, आप जब भी किसी शख्स पर तवक्कल करेंगे आप मलाउन हो जाएंगे, लानती हो जाएंगे। चाहे वो शख्स कोई खादम हो, चाहे वो शख्स आपका कोई बहन भाई हो, चाहे वो शख्स आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो शख्स आपका कोई मालिक हो, आप जिस पर भी तवक्कल करेंगे वो तवक्कल वाला नहीं, जिस पर आप तवक्कल करते हैं वो नहीं लानती होगा, आप लानती हो जाएंगे, क्योंकि आप खुदा के कलाम की नफी करेंगे। अगर कोई पढ़ता है वो अपने लिए पढ़ता है, अगर कोई कुछ करता है वो अपने लिए करता है। अगर आज मैं कहूँ आप में से कोई शख्स है जो हुनरमंद है, आप अपने हुनर को अपने लिए इस्तेमाल करें कि चर्च के लिए इस्तेमाल करें? मैं बड़ा सादा अंदाज से बयान कर रहा हूँ, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। देखिए, आपके पास जो भी हुनर है, मेरे पास अगर हुनर है मैं उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिंपल। तो आपने वो शख्स बनना है जो दूसरों को अपने आप को कैश ना करने दे। लोग क्या करते हैं, आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी फटीकें डाल देते हैं। हमारे पास आंटी वीनस मौजूद नहीं है, नहीं है। आंटी वीनस की ज़िंदगी की मैं आपको बात बताता हूँ। और कभी कभार हम ये समझते हैं मैं खुदा में हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, अगर मैंने किसी को नहीं कह दिया तो मैं बुरा बन जाऊँगा।
اگر मैंने किसी को नहीं कह दिया तो मैं बुरा बन चुका। लोग इस बात का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है ए खुदा दे विच ये सानू नहीं करेगा। मैंने इस बात को अपनी ज़ाती ज़िंदगी से तजर्बा किया। मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है। मैं कोई ये नहीं अपने आप को बड़ा ज़्यादा बढ़ा के बयान कर रहा हूँ, और ये मदद चर्च से हटकर पर्सनल तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी उदों मैनू सारियां ने सबज झंडा ही विखाया। जब भी मुझे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी तब हर एक शख्स ने मुझे सबज झंडा ही दिखाया। मैंने वहाँ से ये बात सीखी, हम मदद करें लेकिन इस कदर ना करें बाद में आपको मदद की ज़रूरत हो जाए। वो उन लोगों से खबरदार रहें जो आपको कैश करते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो आपको सूद में फंसाना चाहें, चाहे वो आपको कर्ज में फंसाना चाहें। देखिए ये लानते हैं, असी समझते हैं असी बड़ा वड्डा काम कर रहे हैं, असी किसी को पैसे फाड़ के तो जरूरत पूरी कर लेती, असी उस लानत दे विच फस जाते हैं। फिर ऐसे लोग जो आपको बुरे वक्त में छोड़ देते हैं और अच्छे वक्त में आपके पास आ जाते हैं, ऐसे लोगों से भी खबरदार है। ये भी खुदा की तरफ से नहीं होते। आप पर बुरा टाइम है, आपके हालात बुरे हैं, आपका सब कुछ बुरा है, सब कुछ यानी चला गया है और कोई भी आपके पास नहीं है, सब ने आपको छोड़ दिया है, सब ने आपको कहा वाह जिंद अपनी। अब आपके पास सिर्फ खुदा है या कोई खुदा का खातम या कोई खुदा के लोग हैं। तो इसका मतलब ये है जो खुदा की तरफ से होंगे वो आपके अच्छे बुरे दोनों हालात में आपके साथ होंगे। लेकिन जो इब्लीस की तरफ से होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे हालात में मिलेंगे ताकि वो आपके अच्छे हालातों को बुरे हालात बना दें। ऐसे लोगों से भी खबरदार है। मुझे पता है आज भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जिस कदर बुरे हालात थे, हर एक रिश्तेदार, सके रिश्तेदार उन्होंने भी छोड़ दिया, कोई कुछ भी नहीं। अगर कोई उस टाइम पे कोई सपोर्ट करता तो हो सकता है आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। मैंने उस टाइम पर 16 साल की उम्र में मैंने इस बात को सीखा, डू नॉट आस्क फॉर सपोर्ट, सपोर्ट योर ओन सेल्फ। दूसरों से मदद ना मांगे, अपने आप की मदद खुद करें। अक्सर औकात हम ये मुहावरा भी सुनते हैं, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। वो लोग जो आपको मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं, आपको कोई बहुत ज़रूरी काम हो, आपने उनके किसी ज़रूरी काम में आपने उनका साथ दिया, लेकिन अब आपको ज़रूरत है और वो आपकी ज़रूरत के काम में आपसे दस्तबरदार हो गए, आपको छोड़ के चले गए। और फिर जैसे ही आपका अच्छा टाइम आएगा, सालों साल वो लोग मिलते नहीं हैं, फिर जब देखेंगे आप अब बेहतर हैं, फिर वो आपके पास आकर आपको यूज़ करना चाहेंगे। ऐसे लोगों से भी खबरदार है, वो भी खुदा की तरफ से नहीं होते, वो भी इब्लीस की तरफ से हैं। इसलिए यू हैव टू बी वेरी वाइज। यीशु मसीह ने कहा कबूतर की मानिद बोले और सांप की मानिद अजे कहें सप ते इब्लीस है। तो फिर यीशु मसीह ने कहा अद्धे फरिश्ते बन जाओ, अद्धे इब्लीस बन जाओ। सांप इब्लीस नहीं है। इब्लीस ने सांप का रूप धरा था, सांप इब्लीस नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। आपको पता है सांप का क्यों जिक्र किया है? सांप का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि सांप के अंदर इतना वो अलर्ट होता है कि जैसे ही आप उसकी दुम पर पाँव रखने लगते हैं वो आप पर पहले हमला कर देता है। यानी इससे बेहतर कि उसे नुकसान पहुंचाया जाए वो अपनी बचत कर लेता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सांप की मारिद होशियार रहना है कि कोई तो नुकसान पहुंचा के चला ना जाए, अपनी बचत आप करनी है, अपने आप को आप संभालना है। और आखिरी किस्म के लोग जैसे मैंने पहले कहा अनग्रेटफुल, इन लोगों के लिए आप जो कुछ मर्जी कर लें, आप अपनी रगों का खून इन्हें दे दें, आप जो कुछ मर्जी कर लें, रुपया पैसा लगा दें, कुछ भी कर लें, वो हमेशा अनग्रेटफुल रहते हैं, वो हमेशा नाशुक्रे रहते हैं। खुदा को नाशुक्रा शख्स नहीं पसंद। तो फिर ये नाशुक्रा कौन सा शख्स आपकी ज़िंदगी में जो खुदा की तरफ से नहीं है? तो हर एक रूह को आजमाओ, खुदा की तरफ से है
कि नहीं। हर एक रूह को आजमाओ। कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको ये जनरल बात बता रहा हूँ, यहाँ से लाहौर में हम कुछ 1000-2000 को कुछ इतना समझते नहीं है, लेकिन देहातों में आप चले जाएं, 2000 रुपया अगर मैं किसी शख्स को दूँ वो सलूट मारता है, और इतना ग्रेटफुल, इतना शुक्रगुजार होता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों की मदद करें जो वाकई ही शुक्रगुजारी करने वाले हों। ऐसे लोग नहीं, आप बेशक उन पर हज़ारों लगा दें, लाखों लगा दें, फिर बाद में वो कहें ओ तुसी पहले ही ना कहते कि तुसी ये नहीं कर सकते, थानू तुसी एनी गोली तो रखिया। फिर बाद में आप अपनी इज्जत बचाने के लिए कर्जे उठाते हैं, बाद में आप अपनी ज़ुबान को रखने के लिए मुश्किल में पड़ते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी ज़ात पर 1 रुपया नहीं लगाया, लेकिन दूसरों की ज़ात पर लगाने की वजह से अभी तक वो उनके कर्जों को भर रहे हैं। तो ऐसे लोग अक्लमंद नहीं होते। या फिर आप अक्लमंद होंगे, आप में खुदा की हिकमत होगी, या फिर आप बड़ी माजरत के साथ बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रहेंगे। तो आज से अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करें, क्या मैं खुदा की तरफ से हूँ? क्या मेरे चुगिर्द जो लोग हैं वो खुदा की तरफ से हैं? जो शख्स अनग्रेटफुल हो कभी भी उसकी मदद ना करें। मदद करके भी उन्हें कहना है तुसी की कीता है। मुझे गोरे बड़े अच्छे लगते हैं। असी भला की करने हैं, असी अपने बच्चों को आप खराब करने होने जरा मैसेज तो बल्कि मिल जाएगी मैसेज के नाल दा। असी की करने अपने बच्चों को आप खराब करने हैं। बच्चों की कमान की उम्र होंगी है, मावां जिहड़ियां ने बच्चों को पलवां दे नाल बन के रखती है, कभी कभी प्यो भी बन के रखते हैं, वो दोनों ही हो जाते हैं। कुछ भी मसला की होंदा है, गोरे की करते हैं, 15-16 साल का बच्चा हो गया, उन्होंने कहते हैं हुण जे तू पढ़ना है ना नाल कोई काम कर तो उसके बाद अपनी पढ़ाई कर। साढ़े तो इत्थे बच्चा जिहड़ा ना वो 40 साल के बाद जवान होंदा, उत्थे 15 साल का हो जाता, उत्थे 15 साल का हो जाता है। तो फिर की होंदा है जो 30 साल की उम्र 35 साल की उम्र जाता है, उन्हें अपना घर, अपनी उन्हें को गड्डी, अपना कोई बिजनेस या अपनी उन्हें को अच्छी भली नौकरी होती है और पूरा स्टेबल होंदा है। साढ़े इत्थे शुरुआत ही 40 साल 35 साल तो होंदी है, ठीक है। तो फिर असी की करने असी वो बच्चों का वेलियां का विआह कर देने, तो वो जी जिम्मेदारियां ने उन्होंने चुकन वाली जी पंडा उन्होंने चुकन वाले वो भी अभी अपने तो पाई रखने। देखिए कलाम कहती हर एक रूह को आजमाओ। असी अपने तो चुकी जाने जब तक ना एक मैं मिसाल देना, तुम इतने हस पाओगे। एक ना कुकड़ पा लिया, वो कुकड़ की ना एक आदत सी, उन्होंने जो भी किसी नाल लड़ाना ना उन्हें पहले 2-4 खानियां फिर उन्हें अगों मारना। कभी कदार साड़ी भी हालत वो कुकड़ वाली होंगी है, जिन्नी देर तक उत्ते पैन गया नहीं ना सानू होश नहीं आती। मैं तुम क्या तुम हस पाओगे, क्यों? तो फिर हम क्या करते हैं, इस बात की याद रखें, आज के दौर में कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर आज भी तुसी बस एक डायलॉग सी, मेरा एक कज़न है उन्होंने असी डायलॉग कहने असी उन्होंने कहने अज तक राजे बेटे ने ना आऊँ किया आऊँ नहीं किया। तुसी भी अज तक असी की सोचते हैं, असी यह सोचते शायद असी बड़े वड्डे हैं। हमेशा जिहड़ा वड्डा शख्स है वो दीन वाला बन है, और उत्थे अपना बीज बोवो, उत्थे दवो जिथे खुदा ने नाम चलान मिले, दूसरा जिंदगियां तब्दील होए। मैं ऐसे लोगों ने देखे जिन्हों ने तुसी सपोर्ट की होंगी है, चलो एक बारी कर दी, लेकिन मैं ऐसे लोगों ने देखे जिहड़े 5-5 साल 10-10 साल भी सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, लेकिन उन्होंने जिंदगी फिर भी कोई फर्क नहीं पै रहा। क्यों? लोगों की जिन्हों की असीं सपोर्ट करने खुदा दे विच आउण दी बजाय वो होर खुदा तो दूर जाते हैं, फिर इहो जी सपोर्ट करनी बनती है। कलाम च लिखिआ हर एक रूह नूं आजमाओ। मैं अक्सर यह गल कहना कि
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। हम में से हर एक शख्स इस बात को याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बाबरकत बनाए। मेरी वालदा एक बड़ा जुमला इन्होंने बचपन में मुझे सिखाया, एक फिल्म का डायलॉग था, लेकिन क्या बात है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ। अन्य बुरे हालात किसी ने रोटी नहीं खाती, अन्य बुरे हालात किसी के घर जाके सालन नहीं मंगया, अन्य बुरे हालात किसी रिश्तेदार ने फोन करके नहीं किया कि 4 दिन ਤੁਹਾਡੇ वाले आके रह लीए। खुदा कुछ वेख के बरकत देंदा है। इंज थोड़ी अज तुसी यसू यसू करना शुरू किया, कल नूं तुसी कहो असीं हुण सेठ आबद बन जाना, ऐसा नहीं होगा। खुदा देखेगा आप में क्या चीज़ है। इंज ही है, इंज तो नहीं होएगा अज तुसी कहो यसू यसू, कल नूं तुसी कहो मैनूं डॉलरां दा बैग लभ जाए, ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, अगर खुदा दुआ से ही पैसे देता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं नाइजीरिया में, हफ्सी जो लोग हैं, साढ़े को तो खलो के परस्तिश नहीं ना होती है, अद्धे पौने घंटे बाद साड़ी बोकी ढेक जाती है, 12-12 घंटे वो खलो के परस्तिश करते हैं नाइजीरियन। हाँ जी, तो सब तो गरीब मुल्क भी हो गई तो ये मतलब फिर कुछ और चीज़ है। इसलिए अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को परखें, आपके गिर्द जो लोग उन्हें परखें कि ये लोग खुदा की तरफ से हैं या नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी हरकतें हैं, तो आज अपने आप को भी तब्दील करें। आप देखिए मेरे सामने कोई आगे ये बात करता है, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ऐसा है वैसा है, मैं कभी भी इन चीज़ों को तरजीह नहीं देता। आज हम क्या करते हो, लोगों ने गड्डी ले लेती, पता नहीं की हो गया, बड़ी छोटी चीज़ें लगती हैं मुझे ये गाड़ी ये वो। मैं आपको बताऊं, अगर आप वाकई मज़ा लेना चाहते हैं ना गाड़ी का, 20-25 हज़ार रुपया एक दिन लगा लें, 20-25 हज़ार अच्छी जी गड्डी लो, और बह के जिथे मर्जी पूरा लाहौर घूमो, तुहानू पता चल जाएगा गड्डी लैन का स्वाद की है। 20-25 हज़ार च तुहानू स्वाद आ जाएगा, ऐ भी इन्ने लख लाने ने, फिर उतो फायदा कभी कुछ खराब, कभी कितने ठोकी तो कभी कुछ। यू हैव टू बी वाइज, आपको अक्लमंद होने की ज़रूरत है। मैंने कहा ये मैसेज बड़ा हट के होगा, हो सकता है ऐसा मैसेज आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये बातें मैं आपके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में यही परेशानियाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं, और फिर हम कहते हैं, मैं एक खादा में उसका मैं डायलॉग यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, हम बहुत दफ़ा अपनी मूर्खता यानी बेवकूफ़ी की वजह से आशीष को हासिल नहीं करते, बरकत को हासिल नहीं करते, और हम सारा ब्लेम भी प्रभु पर डाल देते हैं। बेवकूफ़ असी आप होंगे हैं तो की कह देने हैं, खुदावंद शायद तेरी मर्जी है हुई है, खुदावंद शायद तू है हुई चाहना है, खुदावंद देख ले। तो कभी कभार खुदा ने आपको हिकमत बख्शी है, खुदा की हिकमत सबसे ऊपर है। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, मैं अभी तुमसे दुनिया की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, यानी दुनिया की हिकमत बयान कर रहा हूँ, और तुम्हें ये समझ नहीं आ रही, तो जब मैं तुम्हें आसमानी हिकमत बयान करूँगा वो कैसे आएगी। खुदा की हिकमत के बाद दुनिया की हिकमत है, वो भी आपके पास होनी ज़रूरी है। फिर आप अपने आप को बचाएंगे, आप बचेंगे। मैंने एक सवाल किया, मैंने इनसे कहा, एक भाई था, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको 15-20 साल काम करते हुए हो गए, अगर आज आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए कुछ रुपए पैसे की, तो आप कहाँ से लेकर आएंगे, आपके पास तो कुछ नहीं है। तो अगर वही 20-25 साल से आप थोड़े थोड़े भी जोड़े होते, आज आपके पास कुछ होता। तो ये हिकमत खुदा की तरफ से आती है, एक तरफ दुनियावी हिकमत, एक तरफ रूहानी हिकमत है। और आज जो बातें मैंने आपके गोशे गुजार की, ये रूहानी हिकमत है। इन बातों को आप सीखें, एनालाइज करें, अपनी ज़िंदगी में परखें, और फिर आप मुझे आगे बताइएगा कि मैं अब मेरी ज़िंदगी कैसी और पहले ज़िंदगी कैसी थी। उम्मीद करता हूँ खुदा इस पैगाम के वसीला से हम सब लोग ज़िंदगी में कहते हैं उससे काम करें, हम इस पर अमल करने वाले हों। आए अपनी आंखों को चंद लम्हों के लिए बंद करें, सरों को दुआ करेंगे, खुदावन की शुक्रगुजारी करें, आज उसकी बातचीत करें।
उसके बातचीत करने के लिए उसका कलाम जिस भी रूप में आता है असर दिखा के रहता है। बेशक हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ बेशक